Hello everyone. This problem it is given. This problem is based on the silvering of lens, right? It is given a plano convex lens having refractive index of 1.5 of focal length 20 centimeter has its plane side silvered, right? A plano convex lens is there and its plane side is silvered, and basically this is a question of multiple choice, right? So more than one options can also be correct. So few options are given, and based on that we have to tell which is the correct option, right? So the first option is the radius of curvature of its curved surface. The radius of curvature of its curved surface is half that of surface of equiconvex lens of focal length 20 centimeter made of same material, right? And the second option is an object placed at 15 centimeter on the axis of a convex side gives rise to an image at a distance of 30 centimeter. Third option is an object placed at a distance of 20 centimeter on the axis on the convex side gives rise to an image at a 40 centimeter from it. And the fourth option is it acts as a convex mirror, right? So these are the four options. We have to tell which of the option is correct. So the first thing that we have to understand is we should know some basic idea about how to deal with the problems related to silvering of mirror. So what I'll do, I'll just give you some brief overview of this concept, right? How to deal with the problems related to silvering of lens, right? So basically, concept of silvering of lens, very useful concept is there. Many times there was in different competitive exam. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक जस्ट ये इस फैक्ट को याद रखो कि any silver lens can always be replaced with an equivalent mirror, right? Any silver lens we can replace with an equivalent mirror, right? Next point is the power of equivalent mirror. The power of equivalent mirror should be same as of silver lens system. As of silver lens system, right? So basically, very important point, right? When we replace this silver lens with an equivalent mirror, you have to be careful, right? The power of equivalent mirror should be same as of silver lens system. Now the point is how to calculate this power, right? Based on the calculation of power only we will be able to get to know. उसी से हमें पता चलेगा कि जो जिस मिरर से हम रिप्लेस कर रहे हैं सिल्वर लेंस को, वो कौन सा मिरर होगा, वो क्या कॉन्केव मिरर होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा या वो प्लेन मिरर होगा, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, राइट? सो अल्टीमेट गोल इज टू गेट द पावर ऑफ द सिस्टम, हमारे सिस्टम की पावर क्या है, और बेस्ड ऑन दैट हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि हम उसे किस तरीके के मिरर से रिप्लेस करने वाले हैं, राइट? तो उसके पहले हमें ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो आप याद रखो कि जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर जो लेंस की होती है वो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1/fl, राइट? दिस pl इज द पावर ऑफ लेंस, राइट? दिस fl, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, राइट? हमें याद रखना है कि जितने भी all converging optical devices
will have right, will have positive power, राइट। जितनी भी कन्वर्जिंग डिवाइसेस होती हैं उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव है। अब कन्वर्जिंग डिवाइस में क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, ये कन्वर्ट करता है रेज को, कॉन्वेक्स लेंस, राइट, ये भी कन्वर्जिंग डिवाइस है जो रेज को कन्वर्ट करती है। सो जितनी भी कन्वर्जिंग डिवाइसेस होती हैं उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, जितनी भी डाइवर्जिंग डिवाइसेस होती हैं उनकी पावर नेगेटिव होती है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ, ये सारी डाइवर्जिंग डिवाइसेस है, तो इनकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी, राइट। सो पावर जब भी लेंस की आप कैलकुलेट करोगे तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 1/FL, करेक्ट नो। उसके बाद पावर ऑफ मिरर, जब पावर मिरर की कैलकुलेट करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे -1/FM, राइट। यहां पे PM क्या हुआ, PM इज बेसिकली पावर ऑफ मिरर, राइट। FM इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट। और हमें ध्यान रखना है, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट this FL FM we have to keep with proper sign. FL FM has to be kept with proper sign. हमें proper sign convention follow करना है, with proper sign, right. उसके बाद हम आते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पावर को, राइट। तो बिल्कुल हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, राइट। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हुआ, राइट। और लेट से ये वाली जो सरफेस है इसे हम मिररिंग कर देते हैं, ये वाली सरफेस को हम सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी अगर हमें दिस सिल्वर लेंस, ये जो सिल्वर लेंस है इसे आप रिप्लेस कर सकते हो एक मिरर से, राइट। तो वो जो मिरर जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो उसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम पहले ऐसे सोचेंगे, ये सिस्टम आप ऐसे सोच सकते हो, दिस सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस प्लस दिस कॉनकेव मिरर, राइट। आप ऐसे सोचो। यहां हम देख रहे हैं कि जब भी कोई रे इस सिस्टम से जाएगी, मान लो ये रे ऐसे जाएगी, राइट। यहां से देखो ये रे जब ऐसे जाएगी तो इस लेंस से जाएगी, लेंस से जाने के बाद ये मिरर से टकराएगी और मिरर से टकराने के बाद ये वापस ऐसे लौटेगी, राइट। सो उसी सिचुएशन को यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रे ऐसे जाएगी, सो पहली बार ये लेंस से गुजर रही है, दूसरी बार ये मिरर से टकरा रही है और तीसरी बार जब ये वापस लौट रही है तो वापस से ये लेंस से क्रॉस कर रही है। तो जो नेट पावर सिस्टम की हम लिखेंगे, सिस्टम की जो नेट पावर होगी दैट विल बी पावर ऑफ लेंस, एक बार लेंस से गुजरी, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, राइट। सो नेट पावर जो सिस्टम की हो गई दैट इज इक्वल टू 2PL प्लस PM, राइट। 2 टाइम पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। सो पावर, नेट पावर आप लिख सकते हो 2 इंटू PL, PL की वैल्यू 1/FL, सो 2/FL, और पावर ऑफ मिरर -1/FM, राइट। सो बेसिकली आप देखोगे इन बुक्स जनरली दे विल गिव यू दिस फॉर्मूला कि जो इक्विवेलेंट मिरर होगी उसकी जो पावर होनी चाहिए दैट इज 2/FL - 1/FM। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमारे पास पावर की इंफॉर्मेशन हो गई, राइट। जो पावर अगर मिल गया तो बेस्ड ऑन दैट इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब दिस पावर हैज टू बी एग्जैक्टली सेम ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, और हमें पता है कि इक्विवेलेंट जो मिरर है उसकी पावर की एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है -1/FM। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो -1/FM, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू P नेट। तो यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, राइट। अगर फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस द एंटायर कॉम्बिनेशन विल बी रिप्लेस विद कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अगर फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव आएगा तो एंटायर कॉम्बिनेशन विल बी रिप्लेस विद कॉनकेव मिरर। सो बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ दिस फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल बी एबल टू गेट टू नो कि हमें किस मिरर से रिप्लेस करना है, राइट। ओके, अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तो हो गई बेसिक कैसे डील करते हैं इन प्रॉब्लम्स वेयर सिल्वरिंग ऑफ लेंस इज देयर, राइट। अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। इट इज गिवन द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस refractive index is given and focal length 20 centimeter is there, plane surface is silvered. So हमारा basically in our problem this is the situation, हमारे प्रॉब्लम में ये सिचुएशन है, ये वाला प्लेन सिल्वर्ड है और ये जो मटेरियल है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, राइट। और फोकल लेंथ इसकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है।
तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लेट्स से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ r बोलता हूं, राइट. सो दिस वी कैन इजिली कैलकुलेट यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2 for this lens, right. So 1/20 is equal to mu of lens, that is 1.5 divided by mu of medium is 1 minus 1 into 1/r1. R1 is radius of curvature. We are considering incident ray into this direction. So radius of curvature of this is r. So radius of curvature is positive only, minus 1/r2. And the second surface, second वाला surface तो इसका plane है, तो उसकी radius of curvature क्या होगी, infinity होगी. So that is infinity, correct no. So 1/20 इसकी जो वैल्यू आ गई 0.5 by r, right. So r की वैल्यू आ गई 20 into 0.5, that is 10 सेंटीमीटर. यानी कि ये जो होगी ये 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई, करेक्ट नो. अब आप ऑप्शंस को चेक करो. ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में ये दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज हाफ दैट ऑफ द सरफेस ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस. एक जो दूसरा इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, राइट, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक दूसरा इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हैविंग द सेम मटेरियल, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके कंपेयर में इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ है. तो ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की तो हमने कैलकुलेट कर ली है 10 सेंटीमीटर. अब जो वो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है हैविंग द सेम मटेरियल, राइट, उसकी हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर दैट विल कैलकुलेट हियर फॉर equiconvex lens, for equiconvex lens, उस equiconvex lens के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, राइट. अगेन विल अप्लाई लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम, राइट, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट. सो 1 by focal length of this lens is 20 centimeter, right. So 20 सेंटीमीटर, so 1/20 माइनस लेंस की मीडियम तो सेम है, that is 1.5 माइनस 1, राइट, इंटू 1/r1. अब देखो ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है ना, इक्विकॉन्वेक्स लेंस मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है. अगर मान लो ये रे ऐसे जा रही है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इक्विकॉन्वेक्स है, यानी कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, r है, ठीक है. तो r1 तो ये हुआ ना, r1 ये हुआ. अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, ये पॉजिटिव हो गया, r माइनस 1/r2 तो ये हुआ ना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख लो इधर है, ठीक है, वो नेगेटिव साइन के साथ आप लिखोगे माइनस r, राइट. सो दिस इज 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5 इंटू 2/r, राइट. सो दैट इज 1/r. सो r इंटू दिस केस इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और जो हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. पहला ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एक्जेक्टली हाफ है इक्विकॉन्वेक्स लेंस के. सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट बोलेंगे. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में बोला है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑन द कॉन्वेक्स साइड गिव राइज टू एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ व्यू. यानी कि जो हमारा ये सिल्वर्ड प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है उससे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं 15 सेंटीमीटर, राइट, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये जो इक्विवेलेंट ये सिल्वर्ड जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है ये इसकी इमेज बनाएगा 30 सेंटीमीटर, अपने से 30 सेंटीमीटर पे ये इसकी इमेज बनाने वाला है. तो सबसे पहले हमारा मेन गोल क्या होगा, हम ये जो हमारा सिस्टम है, राइट, ये हमारा जो सिल्वर्ड प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी इक्विवेलेंट मिरर को हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट नो. इसकी फोकल लेंथ तो हमें पता है दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट. इसकी इक्विवेलेंट मिरर को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. सो बेसिकली दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हुआ प्लस ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, राइट. उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करेंगे. तो रे कुछ ऐसे जाएगी, स्ट्राइक करेगी, वापस लौट के आ गई, राइट. तो पहले ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस से जा रही है, फिर ये रे प्लेन मिरर से टकरा रही है और ये वापस इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस से गुजर रही है. सो जो नेट पावर होगी हमारे सिस्टम की, नेट पावर विल बी 2pl plus pm, right. So net power we can write here, net power we can write 2pl, that is 2/fl
minus 1 by fm, right? So putting the values here, 2 times focal length of lens is 20, 2 by 20 minus 1 by focal length of mirror, that is infinity because it is plane surface, so it is 1 by 10, ये 1 by 10 आ गया, यानी कि पावर जो नेट पावर की वैल्यू आ गई, नेट पावर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 by 10, राइट? यानी कि नेट पावर हम लिखेंगे बिकॉज दिस सिस्टम हैज टू बी रिप्लेस विद इक्विवेलेंट मिरर, और इक्विवेलेंट मिरर की जो पावर हम लिखते हैं वो लिखते हैं -1 by fm. सो दिस विल राइट हियर -1 by fm is equal to 1 by 10. So focal length of mirror, this is coming out to be -10 centimeter. यानी कि this silvered plano convex lens, this has to be replaced with a concave mirror having focal length of 10 centimeter. ये हमें कैसे पता चल रहा है? Because the focal length is coming out to be negative. Negative focal length का मतलब ये हुआ कि हम सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं एक concave mirror से, यानी कि हमने इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये जो हमारा सिस्टम है, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जो है सिल्वर्ड, राइट, हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, राइट, बेसिकली इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक कॉनकेव मिरर से, और उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर, राइट. अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. अब देखो इसमें डी ऑप्शन को तो आप ऐसे ही रूल आउट कर सकते हो बिकॉज इट इज गिवन इट एक्ट्स एज ए कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर की तो काम कर नहीं रहा है, इट इज एक्टिंग एज ए कॉनकेव मिरर. सो अब बी और सी ऑप्शंस को हमें करेक्ट चेक करना है. सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, 15 तो आप 15 पे रख दो. अब ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम हो गया, तो ये हमारा इससे 15 पे रख दो ऑब्जेक्ट को. ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर, और आप कैलकुलेट कर लो ये कहाँ पे इसकी इमेज बना रहा है. सो यूजिंग द मिरर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, राइट. ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी. सो 1 by f, 1 by focal length is negative, 1 by -10 is equal to 1 by v plus 1 by u. Object distance is 15, that is -15, correct, no? So this 1 by v we can write here 1 by 15 minus 1 by 10. So 15 10 LCM. So 15 10 LCM, it will be 15 and 10, so 5 3 ja 5 2 60. So 15 4 10 6, so it is coming out to be -2 by 60, right? So that is -1 by 30. So v is equal to -30 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इमेज बनाएगा वो 30 सेंटीमीटर पे. और अगर आप देखो ऑप्शंस को देखो, सो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट placed at 15 centimeter on the axis of convex side gives to the image at a distance of 30 centimeter. So that is the correct option. तो ये ऑप्शन हमारा सही है. So A और B ऑप्शन तो सही है. अब C ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं whether it is correct or not. An object placed at a distance of 20 centimeter on the axis on the convex side gives rise to an image at 40 centimeter. तो आप इसको चेक कर लो. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20, यानी कि इस ये जो मिरर है हमारा इक्विवेलेंट जो मिरर बना, राइट, हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, राइट. तो यहाँ से ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रख के देख लो, 20 सेंटीमीटर, राइट. सो यहाँ से 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, राइट. सो 1 by focal length minus 10 is equal to 1 by v plus 1 by u. u is -20, right. So 1 by v is equal to 1 by 20 minus 1 by 10, right. So the LCM is 20 here. So 1 minus 2, so minus 1 by 20. So v is equal to -20 सेंटीमीटर, right. तो ये इमेज 20 सेंटीमीटर पे बनाएगा. So ऑप्शंस में क्या है? C ऑप्शन में it is given 40 centimeter. So that means this is wrong answer. So that means A and B part are correct options here.